Hello dear, welcome to all of you. Today we will discuss about the prose section which is already written by Steve Jobs, connecting the dots. This is very inspirational story, and just we can say that this is the autobiography of Steve Jobs. In this chapter, Steve Jobs already describes through the speech which is already happened in his life. So let's start without wasting their time. First of all, we know about the Steve Jobs, and after the complete Hindi and English mixed explanation of this chapter. Already I told you about the three questions in last video. In the same way, in this chapter we will already learn about the three topics which is very important in our day-to-day life. Already these three topics, these 3 points happened in Steve Jobs' life. So let's start and come to the point. All of you open your page number 62 and start learning with me. Okay, Steve Jobs, 1955 2011. The timing is Steve Jobs, 1955 2011. Was an American entrepreneur. Mr. Steve Jobs, already known as American entrepreneur. Entrepreneur means businessman, udyogpati. Business magnate means who already grow the business. That person is already known as the business magnate. In next point, inventor and industrial designer. Mr. Steve is already known as the inventor एंड इंडस्ट्रियल डिजाइनर मीन्स एक खोजकर्ता के रूप में और एक औद्योगिक डिजाइनर के रूप में, मेकर के रूप में जाने जाते हैं. ही वॉज द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड को फाउंडर ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेट. ओके, वो क्या थे? एक चेयरमैन थे, संस्थापक के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, सीईओ थे, किसमें? और को फाउंडर मीन्स एक सह संस्थापक थे, यानी अकेले किसी कंपनी का स्टैंड अप न करके किसी का साथ लेकर के किया जाए उसे को फाउंडर कहते हैं. और वो कंपनी कौन सी है? एप्पल इनकॉर्पोरेट मीन्स एप्पल कंपनी. ऑल ऑफ अस नो इन टुडे इज everyone except to get the Apple iPhone, and it's already out of the reach a general pupil. It's the lowest value of this iPhone is up to the 1 lakh. He is widely recognized as one of the pioneers. वो विस्तृत रूप में जाने गए, पहचाने गए एक पॉइनियर के रूप में. पॉइनियर मीन्स एक मार्ग प्रशस्तक के रूप में. ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर रिवोल्यूशन. किस क्षेत्र में? माइक्रो कंप्यूटर रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति. माइक्रो कंप्यूटर की क्रांति के रूप में. द टाइमिंग इज ऑफ द 1970s एंड 1980s. द टाइमिंग ऑफ दैट रिवोल्यूशन इज 1970 से 1980 तक, नियर अबाउट 10 years. आपने इस पॉइंट के अंतर्गत राइटर के बारे में देखा, राइटर स्टीव जॉब्स के बारे में. यह कहानी राइटर स्टीव जॉब्स की एक स्पीच है जो वो अमेरिका में किसी फंक्शन के दौरान लेक्चर में बताए हुए हैं. प्रस्तुत कहानी में स्टीव जॉब्स स्पेशली अपने लाइफ की 3 वो इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जिससे कि वो काफ़ी कुछ सीखते हैं. तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ वाइज इस चैप्टर के बारे में. इन फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया जा रहा है.
Today want to tell you three quest stories from my life. आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानी बताता हूँ. That's it. और ये है वो कहानी. Just 3 stories. केवल 3 कहानी. Already there are so many stories in my life, but I would like to tell you only the 3 stories which is already belongs to my life. Okay. The first story is about connecting the dots. पहली कहानी क्या है? Connecting the dots के बारे में. How to connect the dots. Here, first of all, I would like to clear the meaning of dots. Dots means ideas. Dots mean ideas. आप फुल स्टॉप वाला डॉट मत समझिएगा. यहाँ पे डॉट का मतलब आइडियाज से है. आइडिया का मतलब how can one person connect their ideas with another person. Through this story we already learned how to connect the dots. I dropped out of Reed College after the 6th month. मैं 6 महीने के लिए रीड कॉलेज से, जहाँ पे मैं पढ़ रहा था एक कॉलेज, उस कॉलेज से मैं 6 महीने के लिए वॉकआउट कर दिया गया था. बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर 18 months बिफोर आई रियली क्विट. लेकिन मैं वहां पे लगभग ड्रॉप इन रहा 18 महीने तक, और उसके कुछ समय के पश्चात मैंने कॉलेज को लेफ्ट कर दिया. जैसा कि मैं ड्रॉप आउट और ड्रॉप इन का मतलब बता रहा हूँ. ड्रॉप आउट मतलब स्कूल से निकाल दिया जाना, बट यहाँ पे कंप्लीटली नहीं. जैसे किसी को कुछ टाइम के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है, ऐसा होता है. बट यहाँ पे क्या है, एजुकेशन पीरियड में स्कूल से स्टूडेंट के कैसे ड्रॉप आउट किया जाता है, जब उनको किसी सब्जेक्ट में 80 केटी लग जाता है या फेल्ड हो जाता है या स्क्रूटनिंग कराने के लिए, तो वो उसको कुछ लेक्चर्स के लिए क्लास से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है. ऑलरेडी you have the permission to come to school, but you are not permitted to attend the lectures. So we can say that this is drop in and drop out. Looking back, मैंने पीछे मुड़ करके देखा. It was one of the best decision. यह मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन था. आई वो मेड जो मैंने लिया. I could not stop taking the required classes that didn't interest me. मैं स्कूल में जुड़ा हुआ था, बट मैं उस लेक्चर्स को अटेंड नहीं करता था जिसमें मुझे रुचि नहीं मिलती थी. And begin dropping in on ones that looked interesting. और मैं उस लेक्चर को क्या कर दिया, ड्रॉपिंग कर दिया जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलता था, और मैं वही लेक्चर अटेंड करता था जिस लेक्चर में हमको क्या मिलता था, इंटरेस्ट. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. I didn't have a dorm room. मेरे पास कोई आरामदायक कमरा यानी पर्सनल रेजिडेंस नहीं था. So I slept on the floor of friend's room. इसलिए मैं अपने मित्र के कमरे में फर्श पर सोता था. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with, and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal week and hung Hare Krishna temple. मैं पैसे की बचत के लिए कोक के बॉटल को वापस कर देता था जिसमें मुझे 5 सेंट मिलता था, और जो कि $US का 100वां हिस्सा होता है. और मैं उस डिपॉजिट से भोजन खरीदता था, और वो भोजन लेने के लिए मैं 7 मील दूर मीन्स 21 किलोमीटर की दूरी संडे को तय करता था रात के समय, टू गेट फूड गुड मील, अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए सप्ताह में एक बार. और मैं कहाँ जाता था, हरे कृष्णा टेम्पल. जैसा कि आप सब जानते हो, हरे कृष्णा टेम्पल एक जाना माना प्लेस है जहाँ पे लंगर लगता था वीकली.
ओके, आई लव्ड इट, और जो भोजन मुझको प्राप्त होता था मैं उसको बड़े चाव से खाता था, और वह टेम्पल भी मुझे बहुत प्रिय था। एंड मच ऑफ व्हाट, और इससे अत्यधिक मैं आपको बताना चाहता हूं, आई स्टम्बल्ड इनटू माय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी, मेरे अंदर एक उत्सुकता जागृत हुई जिससे कि मैं लड़खड़ाया थोड़ा। एंड इंट्यूशन टर्न आउट टू बी प्राइजलेस, और यहाँ पे बताया जा रहा है इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब स्पेशली एक अंतर बोध होता है या अंतर ज्ञान होता है, वह धीरे धीरे मेरे अंदर जागृत हुई। टर्न आउट टू बी प्राइजलेस, और वह अंतर ज्ञान मेरे जीवन में बाद में क्या होता है, लेटर ऑन, बाद में एक प्राइजलेस साबित होता है, मूल्य रहित होता है। ऐसा ज्ञान मुझे मिला जो कि मूल्य रहित था। Here's one example, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। Reed College offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. पूरे देश में रीड कॉलेज जो है वो कैलीग्राफी के सुझाव के लिए या कैलीग्राफी के लिए पूरे देश में जाना जाता है। कैलीग्राफी क्या होता है, एक टाइपिंग होता है। कैलीग्राफी क्या होता है, एक टाइपिंग होता है। ओके, अब जिसमें कि व्यक्ति टाइप करता है, क्या करता है, टाइप करता है। ओके, आई लर्न अबाउट शेरिफ, और मैं जब कैलीग्राफी को लर्न किया स्कूल ड्रॉप करने के बाद, मैंने उसमें क्या लर्न किया, I had to take a calligraphy क्लास। मैं स्कूल को लेफ्ट करने के पश्चात कैलीग्राफी क्लास को ज्वाइन किया। I learned, मैंने सीखा, अबाउट शेरिफ, मैं शेरिफ के बारे में। शेरिफ का मतलब यहाँ पे है एक टाइपिंग क्लास जिसको कि हम फॉन्ट बोलते हैं, उस फॉन्ट को मैंने, सेरिफ फॉन्ट को और सैंस सेरिफ फॉन्ट को मैंने सीखा कैलीग्राफी क्लास में। अबाउट व्हाट, जिसके बारे में, मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट, जिसके बारे में मैंने अत्यधिक रूप में यानी एक कंप्लीट ज्ञान प्राप्त किया। किसके बारे में, टाइपोग्राफी के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो टाइपोग्राफी का मीनिंग दिया गया है, द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर, यानी किस तरह से किसी चीज को टाइप किया जाए उसके बारे में मैंने सीखा। ओके, तो आपने देखा कि इस पैराग्राफ में कि स्टीव जॉब्स किस तरह से स्कूल लेफ्ट करने के पश्चात एक नई कला को, एक नए ज्ञान को सीखे। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, 10 years later, 10 वर्ष के पश्चात, when we were designing the first Macintosh computer, जब मैं 10 वर्ष के बाद पहले मैकिन्टोश कंप्यूटर को डिजाइन कर रहा था, इट ऑल केम बैक टू मी, जो कि मेरे जीवन में वापस आया। एंड वी डिजाइन इट, और मैंने इसको डिजाइन किया, इन ऑल इनटू मैक, मैक मीन्स मैकिन्टोश कंप्यूटर को मैंने कंप्लीटली डिजाइन किया। इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन, यदि मैं इस स्कूल को न छोड़ा होता, दैट कोर्स, उस कोर्स को जो मैं लेक्चर्स में पढ़ता था इन कॉलेज, कॉलेज में, द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेस, तो आज मैं मैक कंप्यूटर में, मैकिन्टोश कंप्यूटर में पर्सनल प्रोग्रामिंग के अंतर्गत मैं टाइप फेस प्रिंट न कर पाता, यानी उसको उसमें हम फॉर्मेट न डाल पाते, उस फॉन्ट को हम उसमें इंक्लूड न कर पाते। अच्छा हुआ कि मैंने कॉलेज को ड्रॉप किया और मैं कैलीग्राफी पढ़ा, और जब मैंने कैलीग्राफी पढ़ा तो मैंने उस टाइप फेसेस को परफेक्टली लर्न कर लिया। और फॉर व्हाट, फॉर दैट मैटर, और वही एक कारण था, इवन प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फोन, और किसी भी कंप्यूटर में उस टाइम में विंडोज था और आईबीएम कंपनी के अंतर्गत बनने वाला, और उस कंपनी में अर्थात विंडोज के अंदर स्पेस फॉन्ट नहीं था,
जिसको कि मैंने मैसिंटोश कंप्यूटर के अंतर्गत अप्लाई किया और वह फॉन्ट उसके अंदर पाया गया। एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड मैक, और विंडो ने फिर मैक को कॉपी किया, इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम, क्योंकि उन लोगों के पास अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर नहीं था उन दिनों। ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल, वास्तव में असंभव होता है, टू कनेक्ट द डॉट्स, किसी डॉट्स को कनेक्ट करना, लुकिंग फॉरवर्ड, पीछे देख करके। When I was in college, जब मैं कॉलेज में था, but it was very clear looking backwards in 10 years later, लेकिन यह बहुत ही स्पष्ट था कि पिछले 10 सालों में मैंने जो खोया था, अर्थात जिस चीज का मुझे कुछ पल के लिए गम था, वह मेरे लिए एक वरदान साबित होता है कि पिछले 10 सालों में यदि मैं स्कूल को ड्रॉप न किया होता तो शायद आज मैं कैलीग्राफी न सीख पाता और ना ही 2 प्रकार के वो फॉन्ट, सेरिफ और सेरिफ टाइपफेसेस और टाइपोग्राफी फॉन्ट को न सीख पाता। कहते हैं जो होता है वो अच्छा होता है। Next paragraph, you can't connect the dots, you can't connect the dot looking forward, आप किसी भी डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो आगे देख करके। You can only connect them looking backwards, आप उस डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो केवल पीछे देखकर। कैसे कनेक्ट कर सकते हो? केवल पीछे देखकर। सो यू हैव टू ट्रस्ट, इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए किस बात पे? दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर, जो डॉट्स होता है वह किसी न किसी रूपों में मेरे या आपके भविष्य से जुड़ा रहता है। ओके, यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग्स, आपको कुछ चीजों में विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। योर गट, योर गट, गट मीन्स गट्स कहते हो ना, तो यहां पे गट्स का मतलब होता है साहस या निश्चय, और वो डिपेंड करता है आपके साहस पर, डेस्टिनी आपके भाग्य पर, लाइफ आपके जीवन पर, कर्म आपके कर्मों पर, व्हाटएवर जो भी हो। अर्थात इफ यू हैव विल देन यू विल विन, यदि आपके अंदर विल है, दृढ़ इच्छा है, तो निश्चय ही आप जीत जाओगे। यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा नहीं है तो आप नहीं जीतोगे। इसलिए आपको क्या करना है? अपना दृढ़ निश्चय बना करके रखना है, तभी आप जीतोगे। ओके, ये स्टीव जॉब्स का स्टेटमेंट, दिस अप्रोच हैज नेवर लेट मी डाउन, यह जो अप्रोच है वो मुझे कभी नीचे नहीं गिराएगा। ये जो मेरा निगाह है या मेरा मार्गदर्शन है वो आपको कभी नीचे नहीं गिराएगा। एंड इट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस इन माय लाइफ, और इसके माध्यम से मेरे जीवन में बहुत ज्यादा अंतर पाया गया। तो आपने इनके फर्स्ट स्टोरी में देखा कि किस तरह से उन्होंने डॉट्स को कनेक्ट किया और किस तरह से उसका उन्होंने इन्वेंट किया। चलिए देखते हैं इनके सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टोरी के बारे में। माई सेकंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस, मेरी दूसरी कहानी जो है वो किसके बारे में है? लव एंड लॉस के बारे में, प्रेम और खोने के बारे में। कैसे मैं प्रेम को पाया और कैसे मैं अपने जीवन को खोने ही वाला था पर खोया नहीं। I found, मैंने अपने आप को पाया, what I love to do early life, जो मुझे बचपन में बहुत प्रिय था। वो स्टीव ओजिनेक, एंड आई स्टार्टेड एप्पल व्हेन आई वाज 20, मैं ओजिनेक के साथ
एप्पल कंपनी की शुरुआत किया जब मैं 20 साल का था। In 10 years, Apple had grown from just two of in the garage as into a $2 बिलियन कंपनी। मैंने 10 साल तक उसमें काम किया। एक गैरेज से कार्य को मैंने प्रारंभ किया था जो इसको कि मैं 10 सालों में उस कंपनी को $2 बिलियन पर ला करके स्टैंड कर दिया था। एंड देन और फिर क्या होता है, आई गॉट फायर्ड, और मैं फिर से क्या कर दिया जाता है, गॉट फायर्ड मतलब मैं उस जॉब को खो देता हूं। इट वॉज डिवास्टेटिंग, और यह मेरे जीवन का सबसे दुखमय क्षण था। यह मेरे जीवन का सबसे दुखमय क्षण था। कब? जब मैंने अपने जॉब को खोया। इसको आप इमेजिन कर सकते हो, जब कोई व्यक्ति अपने जॉब को खो देता है तो वह पल उसके लिए कितना दुखदाई होता है। बट समथिंग स्लोली बिगैन टू डाउन ऑन मी, लेकिन धीरे धीरे मैंने फिर से अपने कार्य को प्रारंभ किया। आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड, मैं जिन चीजों से प्रेम करता था उससे मैं आज भी प्रेम करता हूँ। एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर, और इसलिए मैंने पुनः उस कार्य को करने का निश्चय किया। द heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. The heaviness of being successful यानी किसी भी प्रकार से सफल होना एक भारीपन के आधार पर was replaced by lightness, उसको रिप्लेस किया गया हल्केपन के द्वारा, being beginner again, और फिर से मैंने उस कार्य को प्रारंभ किया। It freed me to enter one of the most creative periods of my life, और यह मुझे स्वतंत्र रूप में प्रदान करता है, प्रवेश करता है of the most creative periods of my life, जो कि मेरे जीवन का सबसे क्रिएटिव पल था। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर हम सबको बताना चाह रहा है अपने लव के बारे में, प्रेम के बारे में। क्या कह रहे हैं, डटिंग क्या, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों में। कब? अगले 5 सालों में। आई स्टार्टेड ए कंपनी नेक्स्ट, मैं पुनः एक कंपनी को प्रारंभ किया। अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सर, मैंने उस कंपनी का नाम पिक्सर दिया। एंड फेल इन लव विथ एन अमेजिंग वुमेन हु वुड बिकम माई वाइफ, और मैं जो है क्या हुआ कि एक औरत के प्रेम में पड़ गया जो कि मेरी पत्नी थी। पिक्सर इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो, पिक्सर जो है सबसे सफलतम एनिमेशन स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। एप्पल बॉट नेक्स्ट, और बाद में मैं पुनः एप्पल कंपनी को ज्वाइन किया। आई टर्न टू एप्पल एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट is at heart of Apple's current renaissance. मैं पुनः एप्पल कंपनी को ज्वाइन किया, उस टेक्निक को। वी डेवलप्ड द नेक्स्ट, मैंने एक नए प्रोग्राम को डेवलप किया। इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल, जो कि एप्पल का हार्ट के रूप में जाना गया। एंड रेनेसांस, नए पुनर्जागरण काल में, यानी जब एप्पल को फिर से रीडेवलप किया गया, उसको रीजनरेट किया गया, तो वह एक नई क्रांति लाया। एंड लॉरिन एंड आई हैव ए वंडरफुल फैमिली टुगेदर, और उस समय मैं और लॉरिन एक अच्छे से परिवार के साथ रहते थे। समटाइम्स, कुछ समयों में क्या होता है, लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ ए ब्रिक, कभी कभार ऐसा होता है कि जीवन जो है वो आपको पत्थर दे मारता है। कहने का मतलब सर को पत्थर पे दे मारना, यानी एक बहुत गहरे चोट को या बहुत गहरे सदमे को सहन करना। गिव ए ग्रेट शॉक सडनली, अचानक कोई शॉक मिले। डोंट लूज फेथ, उस समय आप अपने साहस को मत खो। द ओनली वे टू गो टू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू
डू। तो उस समय सबसे सही मार्ग और सबसे महानतम मार्ग वो होता है जिस मार्ग को या जिस कार्य से आप प्रेम करते हो उस कार्य को आपको करना चाहिए। इफ यू हैवेंट फाउंड इट एट, यदि आपको यह फिर से ना प्राप्त हो तो कीप लुकिंग डोंट सेटल, आप उसके इंतजार में लगे रहना, कभी भी रुकना मत। तो इस पैराग्राफ में राइटर ने हमको बताया कि किस तरह से मैं फिर से एप्पल कंपनी को ज्वाइन किया और एक नई कंपनी को मैंने स्टार्ट किया जिसका कि नाम पिक्सर था, और लास्ट मोमेंट में किस तरह से मैं अपनी प्रेमिका को प्राप्त किया और उससे मैंने शादी किया और एक बढ़िया परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। और लास्ट में राइटर ने हमको बताया कि किस तरह से जीवन में उतार चढ़ाव आता है और वह आपको ऐसा सदमा देता है, ऐसा दुख देता है कि आप होपलेस हो जाते हो। तो उस समय राइटर ने बताया कि हमें अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ, मेरी तीसरी कहानी जो है वो मृत्यु के बारे में है कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है स्टीव जॉब्स के लाइफ में कि वो मृत्यु सैया पर पहुंच जाते हैं। अबाउट ए ईयर एगो, लगभग 1 वर्ष पहले, आई वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर, मैं कैंसर की चिकित्सा के लिए गया था। माई डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि आप आराम करो और आप मृत्यु के सन्निकट धीरे धीरे जा रहे हो, विच इज डॉक्टर्स कोड टू प्रिपेयर टू डाई, और डॉक्टर ने अपने कोड में बताया कि आप मरने वाले हो, यानी मरने के लिए तैयार हो जाओ। आई लिव्ड विथ दैट डायग्नोसिस ऑल डे, मैं पूरा दिन डायग्नोसिस पे डिपेंड रहा, उपचार पे। लेटर दैट इवनिंग, उस शाम, आई हैड ए बायोप्सी, मुझे बायोप्सी एक ट्रीटमेंट के लिए लिया गया। आई टर्न आउट टू बी वेरी रेयर फॉर्म, आई टर्न आउट, मैं बाहर आया उस मुश्किल की घड़ी से और मुझे पता चला कि मैं पैनक्रियाटिक कैंसर से परेशान हूँ। दैट इज क्यूरेबल विथ सर्जरी, जिसका कि इलाज केवल सर्जरी से किया जा सकता था। आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ, मैंने वो सर्जरी कराया और अब मैं कंप्लीट रूप में एकदम ठीक हूँ। तो ये रहा स्टीव जॉब्स के डेथ की कहानी। वो कैंसर से पीड़ित थे, पैनक्रियाटिक कैंसर था जिसका कि डायग्नोसिस एक ही उपचार था, सर्जरी, और सर्जरी किया गया और उस सर्जरी से जो है उनको इलाज किया गया और वो कंप्लीट रूप में ठीक हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ, यह सबसे नज़दीक पल था जिसमें मैंने मृत्यु को सन्निकट रूप में देखा। एंड आई होप इट्स क्लोजेस्ट आई गेट फॉर ए न्यू मोर डिकेड्स, और मैं एकदम क्लोज रूप में मैंने प्राप्त किया या मैंने देखा कि यह मेरे जीवन की एक अंतिम घड़ी थी जो कि समाप्त होने वाली थी। हैविंग लिव्ड थ्रू इट, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। आई कैन नाउ शेयर दिस इज टू यू, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। योर टाइम इज लिमिटेड, कि आपका समय भी लिमिटेड है, सीमित है। सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, इसलिए आप अपने उस जीवन को दूसरों के लिए मत जियो या दूसरों के लिए बर्बाद मत करो, यानी आप अपनी इच्छा के अनुकूल जो कार्य करना चाहते हो वह कार्य करो। नेक्स्ट पैराग्राफ। डोंट बी ड्रैप्ड बाय डोगमा, आप किसी भी प्रकार से दबाव को या डिसबिलीव्स को या परेशानियों को आप एक्सेप्ट मत करो, ठीक, यानी किसी भी धर्म सिद्धांतों में आप मत पड़ो। विच इज लिविंग विथ द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग, जो कि दूसरे लोगों की सोच का परिणाम है।
डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस, आप दूसरे के विचारों की आवाज को मत सुनो। ड्रॉन आउट, आप उसका परित्याग कर दो। योर ओन इनर वॉइस, और आपको क्या करना है, आप अपनी आंतरिक अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, किसी बाह्य व्यक्ति की आवाज को मत सुनो, आप अपनी आंतरिक आत्मा की आवाज को सुने। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, आप अपने हृदय की और अपनी अंतर ज्ञान की बात को सुनिए। दे समहाउ ऑलरेडी नो, जो कि ये जानते हैं कि what you truly want to become, कि सच रूप में आप क्या बनना चाहते हो या आप क्या कार्य करना चाहते हो, यह किसी और को नहीं बल्कि परफेक्टली आपको पता है। तो इस पैराग्राफ में राइटर ने हम सबको बताया कि किस तरह से व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए, दूसरे की आवाज को नहीं सुनना चाहिए। When I was, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, When I was young, जब मैं नवयुवक था, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, मैं एक मैगजीन्स को या मैं एक पत्रिका को मैंने देखा, और वो पत्रिका कौन सी थी, जिसको कि द होल अर्थ कैटलॉग के नाम से जाना जाता था। मैं उस पत्रिका में देखा। इन द फाइनल इशू, फाइनल रूप में, ऑन द बैक कवर, उस पत्रिका के पिछले हिस्से में, दे पुट ए फोटोग्राफ, वो एक फोटोग्राफ लगाए हुए थे, ऑफ अर्ली मॉर्निंग, सुबह के किसी देश के सड़क के एक अर्ली मॉर्निंग का सीन था। बीनीथ इट वेयर द वर्ड्स, और उस चित्र के नीचे शब्द लिखा हुआ था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, भूखे रहिए और मूर्ख बने रहिए। यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप भोजन ना करो, भूखे रहो, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम मूर्ख बने रहो। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे स्टे हंग्री, आप नॉलेज के लिए हंग्री रहो, हमेशा कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बारे में सोचते रहो और जानकारी प्राप्त करते रहो। हर व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त आप करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। स्टे फुलिश, कभी भी आप अपनी बुद्धिमत्ता का बखान या उसको ईगो के रूप में रिप्रेजेंट मत करो। इसलिए आप सदैव फुलिश बने रहो और यह जानने का प्रयास करो। क्या जानने का प्रयास करो? कि जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता है, यदि ऐसा है तो लोग आपको सिखाएंगे। ओके, इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ, और यह उस पैराग्राफ के नीचे ये वर्ड था और उस चित्र के नीचे जो वर्ड था स्टे हंग्री स्टे फुलिश, और उसके नीचे साइन लिखा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि यह एक फेयरवेल का नोट हो। आई हैव ऑलवेज विश्ड दैट फॉर माई सेल्फ, जब मैंने उस वर्ड्स को पढ़ा तब से मैं उसको अपने लाइफ में उतारा और उसको स्वीकार किया। एंड नाउ, और अब, एज यू ग्रेजुएट टू बिगिन अ न्यू, जैसे कि आप अभी 10th को क्वालिफाई करोगे और 10th को क्वालिफाई करने के पश्चात आप ग्रेजुएट बनोगे और अपने लाइफ की एक शुरुआत करोगे, तो मैं भी चाहता हूं कि उस पत्रिका में दिए गए उस शब्द को आप भी फॉलो करो। आई विश, मेरी इच्छा है कि दैट फॉर यू, कि आपके लिए, मैं आपके लिए भी अपनी इच्छा अभिव्यक्त कर रहा हूं। क्या? कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश, कि आप भी ज्ञान के लिए हमेशा भूखे बने रहो और हमेशा अपनी ज्ञान का प्रदर्शन दिखावे के रूप में, क्रोध के रूप में, अहम के रूप में, ईगो के रूप में मत करो, और हमेशा लोगों के समक्ष आप अल्पज्ञानी बने रहो। यह बहुत ही प्यारी रचना है स्टीव जॉब्स की, जिसको कि उन्होंने स्पीच के दौरान लोगों को मोटिवेट करने के लिए बताया। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसको कि हम सबको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि जॉन स्टीव्स यानी
स्टीव जॉब्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताया गया है जिनको कि हमें आप सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर 1, डोंट वेट, मेक योर ओन रियलिटी, कंट्रोल एवरीथिंग यू कैन, ओन योर मिस्टेक्स, नो योर सेल्फ। इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है और इससे हमें आपको कुछ ना कुछ सीखना है और अपने लाइफ में, अपने जीवन में इसको उतारना है। तो ये बहुत ही प्यारी रचना है स्टीव जॉब्स की और आशा करते हैं कि आप सब पूरी स्टोरी को परफेक्टली समझ गए होंगे और इस कहानी को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।